और जो भी हमारी क्लासेस होगी वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स डिवाइड होती चली जाएगी। जो भी फर्स्ट क्लास होगी वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स होगी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कंटेंट्स इज जूरिस्प्रूडेंस सेंस ऑफ द CRPC and the constitutional aspect of the CRPC and the rule of interpretation and the inherent power of High Court under section 482. Now what is the purpose of the jurisprudence essence of the CRPC, means what's the purpose of CRPC in law, and what is the why the CRPC is the procedure law. After that, the rule of interpretation. Rule of interpretation is how the CRPC is interpret the all rules according to the law. Now after that, the constitutional aspect of the CRPC, means what's the relation between the CRPC and the constitutional, means the sections of the CRPC between the combination of the article of the constitutions, means under section 57 of the CRPC is about where the person is arrested of any person, then the police officer is duty bound to produce the person before the judicial magistrate within 24 hours. Then the similarly as the article 20 and 21 22 is the liberty of the person. Okay, now the inherent power of the High Court under section 482, this is the most important section in the CRPC. Why the inherent power is given to only to the High Court in CRPC, and why not the inherent power given to the lower court, to district court, the judicial magistrate, all the other courts. कि inherent power सिर्फ हाई कोर्ट में CRPC में हाई कोर्ट के पास ही क्यों है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्यों नहीं है, या फिर मीन्स इन CRPC inherent power means only to the high court, and in civil cases inherent power to the all courts, means civil cases में inherent power सभी कोर्ट के पास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन CRPC, in the code of CRPC, then the inherent power of under section 482 is only to the high court. Now the next point is hierarchy power of courts and the competency of the courts. Inherent power of high court under section 482 and the hierarchy power of under section 6, section 26, section 28 and the section 29. Section 6 to 26, section 6 and 26 is about the classes of the courts, means the stages of the courts, means the classes of the courts. High Court, Session Court, Assistant Session Court, Chief Judicial Magistrate, Assistant Chief Judicial Magistrate, Judicial Magistrate of the first class, Judicial Magistrate of the second class, and the Executive Magistrate. And what's the classes and what's the power of the Session Court, High Court, and the Judicial Magistrate is defined under Section 28 and Section 29. 29 is about the powers of the Judicial Magistrate, and Section 28 is about the powers of the Session Court and the High Court. I mean to say कि Session Court and the High Court has a similarly power, but there are some provisions where the Session Court is passed the order, then the such order may be confirmed by the High Court. For example, the punishment of the death sentence, where the Session Court passed the death sentence shall be confirmed by the High Court before the execute of the डेथ सेंटेंस। कि अगर सेशन जज डेथ सेंटेंस पास करता है तो बिफोर द एग्जीक्यूट ऑफ द डेथ सेंटेंस पहले वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाएगा अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC में, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट्स। कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट्स मीन्स द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस, द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रायल द केस। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की क्या कॉम्पिटेंसी होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है, मतलब कि किसी केस में कितना कॉम्पिटेंट होते हैं, एक सेशन कोर्ट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है और एक हाई कोर्ट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन and trial. Inquiry and investigation is defined under section 2 of CRPC. What is the difference between the inquiry, investigation and trial? Inquiry and investigation both are the different process. कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में भी द सेम प्रोसेस होता है। इंक्वायरी जैसे कि कहने में अगर आता है कि इंक्वायरी किसी भी केस की जब इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी में भी शायद पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती होगी। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ आर द डिफरेंट प्रोसेस।
which is defined under section 2 of the CRPC. Inquiry is always conducted by the judicial magistrate or by the court, and the investigation is conducted always by the police officer or any person which is authorized by the court. Inquiry जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है, और जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई कमीशन अपॉइंट किया है किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या कोर्ट ने कोई कमीशन अपॉइंट किया है कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो स्टेटमेंट के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड या फिर पुलिस ऑफिसर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में इन्वेस्टिगेट द केस रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दैट्स कॉल्ड विद द इन्वेस्टिगेशन विच इज़ कंडक्ट बाय द पुलिस ऑफिसर एंड ऑल्सो बाय द person which is authorized by the court. Okay, now the next point is about the FIR is under section 154. First information report. In CRPC, FIR means the first information report is defined under section 154 of CRPC. Whether the police officer is bound to reduce the FIR, and if the police officer is deemed that there are not sufficient ground for lodging the FIR, may refuse the FIR. अब क्या एक पुलिस ऑफिसर को जब कोई व्यक्ति एलिगेशन लगाता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, उसमें FIR लिखना क्या पुलिस ऑफिसर बाउंड है? और अगर वो रिफ्यूज़ करता है या फिर अगर वो मना कर देता है एक FIR लिखने के लिए, तो क्या जो व्यक्ति है जिसको मना किया गया उसके क्या राइट्स है? What is the liability of the police officer where the police officer is denying to lodge the FIR, and what's the right of the person who is alleging against any person and want to lodge the FIR. So इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 157 to 159. What is the process of investigation? What is the procedure of investigation? And if the investigation is completed, then how submitted the investigation before the judicial magistrate? And 159 is about the hold the preliminary inquiry by the judicial magistrate. Means जब एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को मीन्स जो पुलिस रिपोर्ट को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोसेस होता है उसका। द पुलिस रिपोर्ट इज सबमिट। पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट? Police report is under section 173. After the completing of the investigation, a police officer submit the police report before the judicial magistrate is under section 173. 173 में अपनी पुलिस रिपोर्ट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और उसके साथ साथ हमारा आता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Under section 173 clause 8, further investigation means where the police officer is found that for the disposal of the case the further investigation is necessary, and also the judicial magistrate is satisfied that a further investigation is necessary for the ends of justice. मीन्स जहाँ पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो अंडर सेक्शन 173 क्लोज 8 में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मीन्स वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज़ कम्प्लीटेड एंड सबमिट बिफोर द जुडिशल मजिस्ट्रेट, एंड आफ्टर द कम्प्लीटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन व्हेन द पुलिस रिपोर्ट इज़ सबमिटिंग बिफोर द जुडिशल मजिस्ट्रेट, then the police officer is found that the further investigation is necessary under section 173 clause 8 for the ends of the justice and for the requirement of the collect of the evidences during the course of investigation. उस केसेस में आप 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। अब उसके साथ नेक्स्ट आएगा चार्जशीट एंड क्लोजर रिपोर्ट। What is the meaning of चार्जशीट एंड क्लोजर रिपोर्ट? चार्जशीट मीन्स जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर जब अपनी चार्जशीट
लगाकर जो चार्जशीट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने, दैट्स कॉल्ड विद द चार्जशीट। एंड द क्लोजर रिपोर्ट इज वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज completed. After the completion of the investigation, the police report is produced before the judicial magistrate, and the final report where the no any further investigation is necessary and no any further investigation has been need, then the final report where the submitted by the police officer before the judicial magistrate is called the closure report. Closure report means जहाँ पर फाइनल चार्ज शीट पेश की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो क्लोजर रिपोर्ट होती है। क्लोजर रिपोर्ट मीन्स द प्रोसीजर of the investigation is closed, the finally closed means the closure report. And now the next point is statement. What is the meaning of statement? If the statement is recorded by the police officer and if the statement is recorded by the judicial magistrate under section 164 of CRPC under the criminal law, and what's the effect of the statement during the course of criminal proceeding. Now the point is, if the statement is recorded under section 162 by the police officer and if the statement is recorded under section 164 by the judicial magistrate, then what is the effect of the statement? Now the next point is police remand is under section 167 of CRPC. 167 of CRPC is basically where the investigation is cannot be completed within the 24 hours, then the police officer is duty to demand the remand by the judicial magistrate under section 167 for the purpose of investigation. अब सेक्शन 57 इसके साथ सेक्शन 57 क्या कहता है CRPC का? सेक्शन 57 इज सेज where the person is arrested by the police officer, then the police officer is duty bound to produce the person before the judicial magistrate within 24 hours. Within 24 hours, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को, अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कि 10 साल से ऊपर तक की सज़ा है, मे बी द लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा है, मे बी डेथ सेंटेंस हो सकता है, तो उस केसेस में अब एक दिन में तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी ना। तो अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखना ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 167 मे डिमांड द रिमांड of the person under section 167. Now the next point is case diary is under section 172. Case diary, what is the meaning of case diary and what is case diary and what's the purpose of the case diary? Case diary is a diary where the police officer time to time, मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR लॉन्च की है, अब उसमें उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है एक्यूज्ड की, या जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है विटनेसेस की, किस टाइम रिकॉर्ड की गई है, किस डेट में रिकॉर्ड की गई है, किसके द्वारा रिकॉर्ड की गई है, वो सारी चीज़ें उस डायरी के अंदर मेंशन की जाती है और उस डायरी के हिसाब से ही पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। तो वो जो डायरी होती है दैट्स कॉल्ड विद द केस डायरी, मीन्स रिलेटेड टू द केस, related to the investigation of the case by the investigating officer. Case diary is a diary where the investigation officer during the course of investigation all activities is mentioned in the diary is called the case diary. Now the next point is arrest. Arrest is defined under section 41 to 60. Arrest is defined under section 41 to 60. Then if the police officer made the arrest of any person, then what is the duties of the police officer and what is the liability of the police officer and what has the right of the person of arrested person. एक जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया उसकी क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट द अरेस्ट, और एक पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है। मीन्स के कोई विटनेस उस टाइम प्रोड्यूस होना चाहिए जब उसको अरेस्ट किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को
किसी जगह से अरेस्ट किया गया है तो उसके जो परिवार वाले हैं या उसके जो गार्डियंस हैं उनको इतला करनी ज़रूरी होती है। अरेस्ट करने के बाद क्या राइट्स हैं उसके, मीन्स उसको बेल का अधिकार है तो वो उसको बताया जाता है, उसको वकील करने का अधिकार है वो भी उसको बताया जाता है। ऑल इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 41 to 60, वी विल रीड लेटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द बेल। Bail is defined under section 436 to 439. What is the meaning of bail? Bail is the rule. CRPC tells that the bail is the rule and the jail is the exception. Bail is the rule means every person who is arrested by the police officer has the right to bail, and jail is the exception means where the court is found that the person has not right to bail, then the jail is the exception. मीन्स जेल एक एक्सेप्शन है, किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली जेल में नहीं डाला जाएगा, वो उसे बेल दी जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस है जहाँ पर किसी व्यक्ति को बेल नहीं दी जा सकती, देन द पर्सन इज एप्रीहेंडेड इन द जेल, तब उसको जेल में भेजा जाएगा। द ऑल इज कवर अंडर सेक्शन 436 to 439. Now the next point is cognizance is defined under section 190 to 194. Cognizance is about संज्ञान। Any judicial magistrate of the first class may take the cognizance of the any cases, means every first class judicial magistrate has competent to take the all cognizance of any cases. अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी की बात, ट्रायल करने की कॉम्पिटेंसी की बात नहीं हो रही है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब मान लीजिए कि कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या कोई सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको किसी भी केस है उसको ट्रायल करने की 3 साल तक की उसकी पावर है, 2 साल तक की पावर है या 6 महीने तक की पावर है। अब कोई ऑफेंस है जो कि 302 का है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का है, या कोई डेकोइटी का है, या कोई 6 साल तक की सज़ा का है, तो कॉग्निजेंस मीन्स कि जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी पुलिस रिपोर्ट पर या किसी चार्जशीट पर अपना माइंड लगाता है, दैट्स कॉल्ड बी द कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज माइंड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, it will be deemed that the cognizance is taken by the judicial magistrate, and every first class of the judicial magistrate is competent to take the cognizance of any offence, but except the second class judicial magistrate. Second class judicial magistrate is not competent. Second class judicial magistrate उन्हीं केस का cognizance ले सकता है जो हाई कोर्ट के द्वारा empowered किया जाता है। मीन्स सेकेंड क्लास judicial magistrate is take the cognizance of any cases in which cases where the High Court is specially empowered of the judicial magistrate of the second class. We will read in section 190 to 194. Now the next point is issue of process in under section 204. What is the meaning of issue of process? अब मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेन फाइल की हुई है, क्रिमिनल कंप्लेन। अब कंप्लेन एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। अब सपोज करो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई कंप्लेन एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति के खिलाफ वो कंप्लेन फाइल की गई है, अगर वो वारंट केसेस है, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे सेंड द वारंट टू द accused, and if the case is related to the summon cases, then the magistrate may send to the summon to the person. I mean to say, where a allegation and a complaint has been filed before the judicial magistrate, and if the application is accepted by the judicial magistrate, and where the complaint is related to the warrant cases, then the judicial magistrate sent the warrant to the person for the appearance, and if the summon case is, then the judicial magistrate may send the summons for the appearance. That's called with the issue of process is under section 204. Now the next point is complaint proceeding. Complaint proceeding is under section 200 to 203. What is the meaning of complaint proceeding? Complaint proceeding, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, issue of process में जब कोई कंप्लेन फाइल की जाती है तो वो कंप्लेंट सेक्शन 200 में फाइल की जाती है। अंडर सेक्शन 200 इज अबाउट द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट।
अंडर सेक्शन 200 में जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को, उसके बाद एग्जामिन करेगा अगर उसके साथ कोई विटनेस है उन सभी विटनेस को, और जो भी कंप्लेनेंट या जो विटनेस है उन सभी का जो एग्जामिनेशन होगा या जो उनको जो एग्जामिन किया जाएगा उनको एफिडेविट पे मीन्स ऑन ओथ उनको एग्जामिन किया जाता है। और एग्जामिन करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज़ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर टेकिंग द कंप्लेंट देन द मजिस्ट्रेट मे एक्सेप्ट द कंप्लेंट और मे रिजेक्ट द कंप्लेंट। अब 201 इज़ अबाउट वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। सपोज करो कि अगर कोई कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने अगर पेश की जाती है देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। देन अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उसको फर्स्ट क्लास के पास ट्रांसफ़र कर देगा या फिर उस कंप्लेंट को रिटर्न कर देगा कंप्लेनेंट को। देयर आर द 2 सिचुएशन एट दिस ग्राउंड। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मे ट्रांसफ़र द कंप्लेंट टू द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मे रिटर्न द कंप्लेंट टू द complainant. Now the section 202 is about postpone of the issue of process and 203 is about the dismissal of the complaint. Dismissal of the complaint is about where the judicial magistrate is found that there is not sufficient ground for taking the complaint, then the judicial magistrate dismiss the complaint, and if the complaint is not dismissed then follow under section 204 इशू ऑफ प्रोसेस। अगर कंप्लेंट एक्सेप्ट की जाती है तो फिर एक्यूज्ड के पास सम्मन भेजा जाएगा, अगर सम्मन केसेस है, अगर वारंट केसेस है तो वारंट भेजा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। चार्ज फ्रेमिंग इज अंडर सेक्शन 211 टू 218। व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ चार्ज फ्रेमिंग? किस ग्राउंड पर चार्ज फ्रेम किया जाते हैं कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्वेंडर ऑफ चार्जेस अंडर सेक्शन 218 टू 222। ज्वेंडर ऑफ चार्जेस मीन्स अगर एक व्यक्ति के खिलाफ अगर 2-3 FIR हो चुकी है तो उन 2-3 अगर दोनों तीनों में अलग अलग ट्रायल चल रहा है तो उस ट्रायल को अगर एक ट्रायल में कंबाइन करना है तो वॉज द प्रोसेस ऑफ द फॉर इक्वल द सिंगल ट्रायल वॉज द पर्पज ऑफ द सिंगल ट्रायल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 218 टू 222। ज्वेंडर ऑफ चार्जेस होता क्या है, किस बेसिस पर एक या एक से अधिक जो चार्ज किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रहे हैं उनको अगर सिंगल ट्रायल में चलाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके के ऑफेंसेस होने चाहिए। अब सपोज करो एक ऑफेंस है जिसमें कि 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और एक ऑफेंस ऐसा है जिसमें 10 साल या ऊपर तक की सज़ा हो सकती है, तो उन दोनों का ज्वाइंट नहीं हो सकता, मीन्स वो दोनों ऑफेंस किसी सिंगल ट्रायल में नहीं चल सकते। Section 300 is about where a person is convicted or acquitted. Once a person acquitted or convicted by the competent of the jurisdiction of the court, then again person cannot be held liable for by the any court and cannot be held liable by the competent of the court. Means एक व्यक्ति जो एक बार या तो पनिशमेंट दे दी गई है वो भुगत चुका है या फिर एक्यूटेड कर दिया गया है, दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टे ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 224। स्टे ऑफ चार्ज मीन्स विड्रा ऑफ द चार्जेस बाय द प्रोसिक्यूशन। जब प्रोसिक्यूशन को यह लगता है किसी भी स्टेज पर कि चार्ज विड्रा कर लेने चाहिए, मीन्स देयर आर नॉट द सफिशिएंट ग्राउंड फॉर टेकिंग द फॉर कंडक्ट द ट्रायल, देन द प्रोसिक्यूशन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट में विड्रा द चार्ज। जब चार्ज विड्रा किए जाते हैं, अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले चार्ज विड्रा किए जाते हैं तो इट विल बी the case will be deemed to be the discharge of the person and where the charge is framed by the court। और उसके बाद अगर कोई अगर प्रोसीडिंग है या कोई अगर चार्ज है वो विड्रा किया जाता है तो उसका मतलब होता है एक्यूटेड। एक्यूटेड मीन्स बरी, किसी व्यक्ति को बरी करना। मीन्स अगर चार्ज से पहले अगर किसी को आप डिस्चार्ज करते हो तो दैट्स कॉल्ड बी द डिस्चार्ज। अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद करते हो तो इट विल बी डीम्ड टू बी द एक्यूटेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 320 ऑफ द CRPC which offense may be compound under section 320 is declared and the withdraw of proceeding under section 321। now इसके साथ साथ plea bargaining is under section 265A to 265L। plea bargaining, what is the meaning of plea bargaining?
and on what ground a person and a accused may plea bargaining with the victim, किस ग्राउंड पर प्ली बार्गेनिंग की जाती है और कौन कौन से ऑफेंस की प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। विड्रा ऑफ प्रोसीडिंग इज अंडर सेक्शन 321। विड्रा ऑफ प्रोसीडिंग मीन्स जब एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जब किसी प्रोसीडिंग को विड्रा करता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एंड ऑल्सो विद द consent of the state government if the prosecutor is appointed by the state government and with the consent of the central government if the prosecution or prosecutor is appointed by the central government। मीन्स जब भी किसी प्रोसीडिंग को जब भी किसी प्रोसीडिंग को विड्रा किया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो वो कोर्ट की तो मतलब कोर्ट का तो कंसेंट लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ वो अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेगा और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट नेसेसरी है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड ट्रायल बाय द सेशन ऑफ कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा कौन कौन से ट्रायल किस तरीके का, क्या सेशन कोर्ट की पावर है ओरिजिनल मीन्स कॉग्निजेंस लेने की, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेता है किसी भी केस का, मान लीजिए कोई 302 का केस है या कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल से ज़्यादा तक की सज़ा है, तो उसमें क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को राइट है किसी भी केस का ट्रायल करने का। इफ़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रायल द केस देन व्हाट इज़ द ग्राउंड एट दिस सिचुएशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC। इफ द सेशन कोर्ट पास्ड डेथ सेंटेंस टू एनी पर्सन देन द डेथ सेंटेंस शैल बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट बिफोर द कन्फर्मेशन ए पर्सन देन द बिफोर द कन्फर्मेशन द पनिशमेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूट। मीन्स जो डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट के द्वारा दी गई है किसी भी व्यक्ति को वो कंफर्म होनी ज़रूरी है हाई कोर्ट के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 177 टू 189। व्हाट इज़ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब सपोज करो कि कोई पानीपत की कोर्ट है और ऑफेंस हुआ है करनाल की जुडिक्शन में, करनाल में, तो पानीपत की कोर्ट उसका जुडिक्शन उसको ट्रायल नहीं करेगी ना, क्योंकि वो आउट ऑफ द जुडिक्शन है, पानीपत की जुडिक्शन से बाहर है। अब कोई पुलिस स्टेशन है, अब मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 पुलिस स्टेशन है या 20 पुलिस स्टेशन है, तो हर पुलिस स्टेशन की अपनी एक जुडिक्शन है। उस जुडिक्शन के अंदर अगर क्राइम होता है देन द पुलिस ऑफिसर इज़ ड्यूटी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड द पुलिस ऑफिसर इज़ ड्यूटी बाउंड टू लॉज द FIR। अगर आउट ऑफ जुडिक्शन है देन द पुलिस ऑफिसर हैज़ नॉट राइट। अपील and revision. Appeal is defined under section 379 to 394 and revision is defined under section 397. What is the meaning of revision and what is the meaning of appeal and a person किस ग्राउंड पर अपील कर सकते हैं, और अपील अगर जो सुपीरियर जो कोर्ट होते हैं उनके द्वारा जो अपील एक्सेप्ट की जाती है वो किस ग्राउंड पर अपील एक्सेप्ट की जाती है। अपील जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अपील फाइल की जाती है, अपील हमेशा फैक्ट पर इशू ऑफ फैक्ट अगर कहीं है तो इशू ऑफ फैक्ट के ऊपर कभी भी अपील एक्सेप्ट नहीं होती। अपील इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इशू ऑफ लॉ। जहाँ पर इशू ऑफ लॉ अराइज होता है वहाँ पर अपील एक्सेप्ट होती है। नाउ द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिविजन। इरेगुलर प्रोसीडिंग, irregular proceeding, and after that the reference is defined under section 395 and irregular proceeding is defined 460 to 466 466. Now these are the contents of the CRPC which is discussed. Then